So our next topic is internal check. ठीक है. See, whenever we see about the internal check, तो internal check मतलब जो internal control है ना, that is only divided into two things, that is internal check and the internal audit. ठीक है. So basic meaning क्या है internal check का? It is a system of allocation of responsibilities. Here you are allocating the responsibilities to each and every person. Here you are dividing the work, that is division of the work and the methods of recording the transactions. First हम जो काम होगा वो divide कर देंगे among the employees, and then accordingly जो भी method दिया होगा accordingly we will require to record all the transactions. अब क्या होगा, जैसे वर्क सिंस इट इज बिन डिवाइडेड, तो हर एक का काम कोई ना कोई होगा जो मॉनिटर करेगा. So work of an employee check continuously by correlating with it of the work of the others. मतलब there will be a one person who will be checking the work of the another. Then दूसरा person का कोई जो काम होगा वो थर्ड पार्टी उसको चेक करेगा. So what is over here the एक better जो इसका जो फीचर है वो क्या है कि no one employee has exclusively control over any of the transactions. So basically when I say here you are segregating the duties. There is a segregation of the duties has been done, and here the segregation of the duties become most of the important, and it is must. You need to arrange your staff duties to prevent any type of the errors and the frauds. So there should not be any two persons may not collide and see. अगर एक ही सब काम अगर हम दो तीन जन को दे देते हैं तो what they can do, two person may collide and they can do the fraud. So just to avoid it, what we are doing in the internal check, we are segregating the duties. So in basically इसका internal check is nothing but practically अगर आप देखो तो it is a continuous internal audit which will be carried on by a staff itself only, but only the work will be divided among the individuals. That also it will be divided independently. और जो भी since if you are dividing the work, obviously it's need to be checked by other member of the others work. तो यहाँ पर accounting process कैसा डिजाइन किया हुआ है, so that no single person is authorized to carry out all the operations which involved in the transaction. So the objective is only, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव ही क्या है उसका कि कोई भी एम्प्लॉय को एक्सक्लूसिवली कंट्रोल नहीं देना है. लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल. से व्हेन आई से अबाउट द दिस परचेस प्रोसेस, हम एग्जांपल लेते हैं परचेस प्रोसेस कैसे होता है. तो सी स्टेप वन में क्या होता है, वी परचेज ऑर्डर, वी गिव द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लाइक गिविंग द परचेज ऑर्डर, व्हिच इज द सेकेंड स्टेप. देन we will analyze the vendor कि हमें जितने रेट में चाहिए वो रेट में हमें कौन दे सकता है. जो बिकॉज सी जब जैसे ही हम परचेस ऑर्डर देंगे हम वेंडर्स से कोटेशंस भी तो मंगवाएंगे ना कि यू गिव द कोटेशन, जिसका सबसे बेटर कोटेशन होगा वी विल यू नो फाइनलाइज देम एंड डायरेक्टली हम उनको ऑर्डर प्लेस कर देंगे. थर्ड स्टेप क्या होगा, गुड्स विल बी रिसीव्ड. बट ये गुड्स कहाँ से कौन कौन रिसीव करेगा, ऑब्वियसली स्टोर डिपार्टमेंट विल बी रिसीविंग दिस गुड्स. So after receiving, invoice will be coming. So fourth step will be that invoice will come and you will have to do the payment. तो चलो से फॉर एग्जाम्पल ये परचेस का मैंने फोर्थ स्टेप किया, तो यहाँ पर मुझे ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर देना है. परचेस ऑर्डर शुड बी गिवन बाय द अदर एम्प्लॉय. फिर स्टेप टू में जब कोटेशन आएगा तो वो कोटेशन का कितने में क्या मंगवाना है, दैट शुड बी प्रॉपरली एनालाइज बाय द परचेस डिपार्टमेंट. सो सेकेंड वन, मुझे कोई सेकेंड स्टेप के लिए मुझे कोई और पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप पे व्हाइल रिसीविंग द नोट्स ऑब्वियसली द स्टोर डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व, तो वहां पर जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे वो अलग होंगे. तो आप देख सकते हो कि हर एक जन अपनी अपनी सेपरेट ड्यूटीज कर रहा है. ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर दिया तो कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए, तो हम प्रॉपरली इंटरनल जो भी है वहां पर प्रॉपर चेक रख सके. फोर्थ, पेमेंट कौन करेगा, ऑब्वियसली हम पेमेंट के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि यू जस्ट गिव इट द पेमेंट. So see, everyone is having a check on each other because of this. Even आप यही एग्जाम्पल बैंक में अप्लाई करो. सबसे पहले सी इफ से फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू द बैंक टू विड्रॉ द मनी, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी यू आर गोइंग टू द बैंक एंड यू वांट टू विड्रॉ द मनी. से फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन द स्टेट बैंक, देयर यू विल गो. आप अपना चेक क्या करोगे, ऑब्वियसली विड्रॉ करना, यू विल हैव टू गिव द चेक, तो यू विल प्रेजेंट द चेक
सो वन क्लर्क विल बी देयर हु विल बी टेकिंग डाउन योर चेक। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जैसे ही आप देखो बैंक में जाते हो, आप जैसे ही चेक देते हो, फिर आपको टोकन मिलता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन जैसे ही वो टोकन नंबर कॉल आउट होगा, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे आपको पैसा लेने जाना पड़ेगा। सो देर विल बी वन क्लर्क सिटिंग ओवर देयर एंड दे विल बी गिविंग, व्हेन यू प्रेजेंट द चेक, द क्लर्क विल बी गिविंग यू द टोकन, और वो आपको बोलेगा, वो जो टोकन है वो ठीक है आपको देके आपको बिठा देगा। देन इंटरनल हाउ दे विल मैनेज, जो भी दैट क्लर्क है, से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस क्लर्क वन, तो ये जो क्लर्क वन जिसने हमने टोकन, जिसे हमें टोकन मिला है, वो क्या करेगा, वो क्लर्क बी को वो चेक, मतलब वो नेक्स्ट काउंटर पर चेक है ना, देने के लिए देगा कि ये देखो ये जो अकाउंट है वो प्रॉपर है या नहीं, इतने अकाउंट में इसको इतना विड्रॉ करना है। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू विड्रॉ 50,000 रुपीज, तो वो जो भी क्लर्क टू होगा, तो क्लर्क टू ये वेरीफाई करेगा कि हाँ आपके अकाउंट में इतना पैसा है या नहीं। करेक्ट। देन वो एक बार क्लर्क टू ने चेक कर लिया कि हाँ अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, देन इट विल पास ऑन टू अ थर्ड क्लर्क। तो थर्ड क्लर्क का काम क्या होगा, जस्ट टू वेरीफाई द सिग्नेचर, कि आपकी जो सिग्नेचर, आपको आपने जो बैंक में सिग्नेचर्स दिए और जो चेक पर किए वो सिग्नेचर मैच करी है या नहीं। सो द थर्ड क्लर्क का काम होगा वेरीफाई द सिग्नेचर। इफ एवरीथिंग इज प्रॉपर, से फॉर एग्जाम्पल अकाउंट में आपने चेक, उन्होंने चेक किया आपके बैलेंस भी प्रॉपर है, सिग्नेचर भी प्रॉपरली वेरीफाई हो रही है, तो देन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लर्क फोर विल बी देयर, जो कैशियर होगा, जो आपको बुलाएगा और आपको पैसा दे देगा। सो जस्ट फॉर एनकैशिंग द चेक, आपको जो चेक को एनकैश करना था, जो विड्रॉ करना था आपको पैसा, तो जस्ट फॉर एन एनकैशिंग द चेक यू वेंट थ्रू द, सी हाउ मेनी स्टेप्स यू वेंट थ्रू, ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेप्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इंटरनली चेक के वजह से प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अभी देखो इसके वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गेट फिक्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गेट फिक्स। अब मैं से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अकाउंट में बैलेंस नहीं था, फिर भी ना हमने या से नहीं, बेटर है कि हम ये देखेंगे कि इफ से फॉर एग्जाम्पल कि जो चेक पे साइन थी और जो आपने वहां पर साइन है वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, साइन में देयर वाज अ एरर, तो अभी मुझे पकड़ना है, तो मैं किसको जाके पकड़ूंगी, शुड आई गो टू क्लर्क वन, क्लर्क टू, क्लर्क थ्री और कैशियर? ऑब्वियसली मुझे पता है ना कि सिग्नेचर विल इज वेरीफाइड बाय द क्लर्क थ्री, तो मैं सबसे जाके पहले जाके उसको पूछूंगी कि क्यों, क्योंकि मैंने वहां पर जैसे ही क्लर्क थ्री ने साइन वेरीफाई की, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया था। तो अगर मुझे साइन में कुछ भी एरर मिला, तो आई शुड डायरेक्टली गो टू द क्लर्क थ्री एंड आई शुड फाइंड इट आउट। ठीक है, हमने कैशियर तक दे दिया, पर फिर देखा, कैशियर ने देखा क्या ना, जब अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, तो फिर ये किसकी मिस्टेक निकली, क्लर्क टू की। तो यहाँ पर देखो मुझे सबको पकड़ना नहीं पड़ेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, मुझे जहां पर प्रॉब्लम आया मैं पर्टिकुलर वो पर्सन को पकड़ूंगी एंड आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस टू देम। सो व्हाट इट हैपेंस, इट आल्सो इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क। यहाँ पर आप वेरीफाई कर रहे हो प्रॉपरली इंडिविजुअल वर्क का, एंड हियर यू आर इवन क्रॉस चेकिंग इट अप। फिर देखो एन कैश करने के लिए सारे इतने प्रोसीजर्स गए, तो ये सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो क्या थे, यू आर जस्ट क्रॉस चेकिंग इट आउट, यू आर जस्ट क्रॉस रिकनसाइलिंग इट आउट एंड देन यू आर मूविंग अहेड। समझ में आ रहा है? यस क्लास, एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स। सो व्हाट ऑल आर द बेसिक फीचर्स, इसके बेसिक फीचर्स क्या है फिर जब हम देखते हैं इंटरनल दिस। सो इंटरनल चेक इज अ part of the system of internal control. In the starting only I told that internal control is a superior system. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट्स है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल चेक। तो यू कैन से दैट इंटरनल कंट्रोल इज अ पापा एंड उसके दो, इंटरनल चेक एंड द इंटरनल ऑडिट, ये दो उसके सन है। यू कैन ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। सो इंटरनल कंट्रोल इज अ सुपर सिस्टम एंड इंटरनल चेक एंड द इंटरनल ऑडिट इज द पार्ट ऑफ इट। तो यही है फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरनल चेक इज अ सिस्टम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिविजन ऑफ वर्क. नाउ दिस आई हैव स्टेटेड विथ माय एग्जांपल. मैंने आपको परचेज प्रोसेस भी बताया, मैंने आपको बैंक का प्रोसीजर भी बताया. तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो अलोकेशन हो गया था, काम सब में बढ़ गया था, तो देयर वाज अ डिविजन. और देखो मैंने एज इफ आपको बताया कि अगर साइन में कुछ एरर है तो हम जाके किससे डायरेक्टली पूछेंगे क्वेश्चंस, क्लर्क 3 को. So here there is a, since the we fixes up the responsibility as well. So internal check के वजह से there is a proper division of the work and systematic allocation of the responsibility. Then next is it is peculiar special arrangements of the bookkeeping routine. देखो यहाँ पर आपको बहुत easily, अगर आपको यहाँ पर since एक special आपका जो routine है वो setup हो जाता है. Just because of the internal this allocation of responsibility and a division, आप एक proper arrangement करते हो, special arrangement is there. क्या आपने अपने example में देखो हमने क्या arrangement किया था, हमने टोकन दे दिया था हमारे कस्टमर को, मतलब जिसको विड्रॉ करना है बैंक से, जो पैसा लेने आया उसको टोकन मिल गया. और इंटरनली सारे लोगों के स्पेशल अरेंजमेंट थे, सबका काम अलग अलग था, जिसके वजह से उन्होंने अपनी जो अपना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने फिक्स कर दिया था. So the work is divided in such a way that one employee is independent and the cross check with the help of the other employee. Obviously here you are cross verifying the work done by the one person is automatically here it is checked by the another person. ठीक है. So it is a kind of internal audit carried out by the staff itself at a very stage of the doing the work. यहाँ पर it is kind of nothing but internal audit जैसा ही है कि यहाँ पर internal staff ही क्या करेगा, सारा कुछ चेक कर देगा. एक दूसरे का जो काम है वो अपने आप से ही इन लोग चेक कर लेते हैं. ठीक है. और यही तो हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसे हमें वर्क डिवाइड नहीं करना है. अगर 2 या 3 पर्सन एक ही काम कर रहे हैं तो देर इज सो पॉसिबल दैट दे मे कल्यूट टुगेदर. इट मींस दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन जस्ट डू द फ्रॉड. तो किसी भी एक एम्प्लॉय का पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. लेट द सिंगल एम्प्लॉय डील विथ वन एस्पेक्ट एंड नॉट विद द एंटायर ट्रांजैक्शन. अगर मैंने ये विड्रॉवल का प्रोसेस किसी एक को ही दे दिया होता तो सोचो कितना टाइम जाता. वो एक ही पर्सन अकाउंट भी चेक करता, वो एक ही पर्सन टोकन भी देता, वो ही पर्सन साइन भी वेरीफाई करता. सो इट वुड बीन हैव अ लॉन्ग प्रोसेस और कितना टाइम चला जाता उसके वजह से. सो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता अगर मैं सेग्रीगेट नहीं करती ड्यूटीज को तो. एंड व्हाट डज द सिंस सी आप इट इज सीन दैट कि जो भी पर्सन होगा ना सेग्रीगेशन की वजह से वो कस्टोडियन बन जाएगा. एंड ऑब्वियसली अगर आप पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज को, अपने ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पर पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हो, सो बेटरली क्या होगा, आप यहाँ पर ड्यूटीज आर रोटेटेड जस्ट टू ब्रेक डाउन द मोनोटोनी. एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस कि अगर कुछ एरर्स और फ्रॉड्स भी कहाँ पर हो गया है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. So here the division and the rotation plays an important role. Here automatically the work is getting checked, segregation of duties is proper, and the expert people को expert काम मिलेगा. ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई भी काम दे देंगे, जिसमें आपका expertise है उसमें आपको वो काम मिलेगा. And even all this custody is in the hand of the senior people. And सिर्फ recording work जो भी होगा वो कौन करेगा, junior persons करेंगे. समझ में आ रहा है? Yes class. Anyone facing any of the doubt till here? No? Sure? So can you just tell me here what will be the an auditor's ka duty regarding an internal check? What will be an auditor's duty when I say कि auditor की क्या duty हो जाएगी जब मैं internal check का बताती हूँ तब? Can anyone answer me?
ये तो हमने पढ़ दिया, इंटरनल चेक का मीनिंग और ये सब तो हमने पढ़ा, बट व्हाट अबाउट ऑडिटर साइड से उसकी क्या ड्यूटी हो जाएगी? लेट्स सी देन ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इंटरनल चेक. This is, we have a separate, standard on it. So SA 400 ने कुछ हमें रिकमेंडेशंस दिए. किसने? Standard on Auditing 400. This has given us certain of the, recommendations दिया है regarding the auditor's duty. ऑडिटर को कैसे ड्यूटी करनी है इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल चेक. सी ऑडिटर मे डिपेंड अपॉन द टेस्ट चेक. डू यू ऑल अग्री? हमने सबसे पहले इनिशियल ऑफ दिस चैप्टर में हमने टेस्ट चेक के बारे में पढ़ा था. सो ऑडिटर मे डिपेंड अपॉन द टेस्ट चेक, बट कब वो कर सकता है? इफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज फुल प्रूफ, सब कुछ सही से जा रहा है, तो वो टेस्ट चेकिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर सकता है. But the auditor always should keep in the mind that his liability is not reduced under any of the circumstances. हाँ, उसके वजह से ये नहीं कि वो अपनी liabilities से छूट जाएगा. No, he needs to decide कि कितने extent तक मुझे checking करना है on the basis of my internal check. So in the organization, when you find that there is no internal control and the clerk has a full control over all the books of accounts, so it is better कि हम भी क्या करेंगे, हम भी ऑडिट इन डेप्थ करके सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करें. आई नो इन सच अ यू विल से कि मैम तो फिर तो काफी टाइम चला जाएगा. ऑब्वियसली काफी टाइम चला जाएगा, बट एटलीस्ट वो वर्थवाइल होगा. बिकॉज अगर हम सब कुछ चेक नहीं करते तो मतलब ऑडिटर विल बी ऑन अ ग्रेटर रिस्क. एंड इट इज सो पॉसिबल कि जो भी एरर्स और फ्रॉड्स हुए वो डिटेक्ट भी ना हो सके. So in the organization, when there is a good system of the internal check, the auditor may rely completely, or you can say on a greater extent, on the test checking. So वहां पर वो few test checks apply कर सकते हैं and representative transactions को भी select कर सकते हैं. So during this course of the examination, if if he come across any of the mistake, then he should do the detail checking. He should go dipper in that case. अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, थोड़ा भी वो सस्पेक्ट किया उसने एरर को, then he should increase his extent of checking. So his extent of the checking will depend upon the circumstances which he is facing. तो इसके वजह से द सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए जो हमें रिकमेंडेशंस में मिले हैं वो कि देयर शुड बी अ प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम. सिस्टम को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करो. सिस्टम एस्टैब्लिश कौन करेगा? ऑडिटर करेगा क्या? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की? ऑब्वियसली इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एन मैनेजमेंट. ऑडिटर विल नॉट गो एंड एस्टैब्लिश द सिस्टम. Basically this will be the duty of the management. So management is responsible for establishment of the internal control in properly establishing and operating the internal check. So it is a duty of a management over here to establish the system. Second point is reliability. ये ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना रिलायबल है या नहीं. What is reliable or not? Internal check and the internal control. So the auditor should verify the reliability of a system of the internal check. वो मैनेजमेंट का काम नहीं है. वो मैनेजमेंट आपको नहीं बोलेगा कि आप ऑडिटर भाई साहब आप इतना रिलायबल करना. ना ना ना, इट विल बी द रिलायबिलिटी का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी ऑफ एन ऑडिटर. Then the third point is that the auditor needs to do the evaluations. So the auditor needs to evaluate the system
जस्ट क्या इंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर द सिस्टम दैट कि ये सिस्टम एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर पा रहा है या नहीं, सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं. So there should be a proper evaluation which needs to be done for the system of internal check. तो अगर अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ है तो वो ऑडिटर को किस में हेल्प करेगा. सी ए पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. बिकॉज देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड देन ही शुड मूव अहेड. So पहले auditor should get whole of the knowledge. He should have a full knowledge of the system. He should discuss it by the managers. He should study the manuals. अगर उसको लगे तो वो employees से भी पूछ सकता है. तो इसके सबसे पहला काम होगा कि आप अंडरस्टैंड करो टेक्निक्स क्या है, फ्लो चार्ट्स क्या है, कैसे सब रिकॉर्डिंग हो रहा है. तो अंडरस्टैंड द सिस्टम इज योर फर्स्ट स्टेप इन द इवैल्यूएशन. बी स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट. So he should see test check the application of the system के proper application है या नहीं. जो सिस्टम इन लोग ने अप्लाई किए वो एक्चुअली में वो in practice it's proper or not. He can even verify some of the transaction in the details. He can use the techniques of the questionnaires as well just to check के proper है या नहीं internal checks. And then on this basis, on the first and the second step, the third step will be of the judgment. So he should be able to judge के whether the system is proper or not. कितना वो rely कर सकते हैं, on which statement he can rely it up. समझ में आ रहा है? So evaluation में क्या था? The auditor should evaluate the internal check just to ensure that it can prevent and detect the errors and frauds. उनको ये भी देखना है कि सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है या नहीं, रिकॉर्ड हुआ है टाइम टू टाइम या नॉट, assets are properly safeguard or not, whether assets को हम regularly verify कर रहे हैं या नहीं. He needs to study whole of the internal check as well, and then he should decide okay what to check, when to check, how to check, how much to check. अगर obviously अगर internal check reliable है तो he can use the test check that is checking less than 100% of the transaction, and he can concentrate on the important areas of the auditing. Yes, class, anyone facing any of the doubt, just take down these points. Is it done? Now the next thing which we need to study is we need to study the general consideration and framing a system of internal check and as well as the control. So it's better I write it down and control as well. तो ये आपको आंसर दोनों में हेल्पफुल होगा. So the सबसे first point is no independent control. What does this say? Independent control of any aspect of the transaction shall not be entrusted to any of the one person alone. It should be properly divided. क्योंकि हमने देखो internal control और internal check हमने दोनों में यही पढ़ा कि there should be a proper division of the work. So अगर properly work is divided among the department and the sections, so it would be very much easy. Different person should deal with the different aspects of the transaction. So there should be a no independent control. Second one is reshuffling of duties.
ड्यूटीज शुड बी रीशफल्ड। जब भी जरूरत पड़ी, अगर फ्रीक्वेंटली नीड पड़ रही है तो फ्रीक्वेंटली आप ड्यूटीज को रिशफल कर लो, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड के बिकॉज ऑफ दिस रीशफलिंग एफिशिएंसी पर नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी। देन अ प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी देयर। अब प्रोसीजर्स तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि हमने जो ये प्रोसेस पढ़ा वो, बट व्हाट ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स? यू नीड टू सी द रिसिप्ट्स, यू नीड टू सी द वाउचर्स, बिल्स, चालान, कि ये प्रॉपरली प्रिपेयर हुए या नहीं, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है या नहीं, ये प्रिसाइज है या नहीं, दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक। देयर शुड बी ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चेक रख सकते हैं। तो क्रॉस चेक इज द अनदर पॉइंट। Now, when I say about the cross check, see, the work should be divided in such a way that the document which is prepared by the one person automatically वो कोई और person से check हो जाए, ठीक है? And no person should be given the access to the books, huh? Access to books. When I say no access to the books, what it means? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास असेट है, तो मैं पर्सन हूं कि मुझे ये देखना है कि फिजिकली सारे असेट्स प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर है या नहीं। तो फिर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि कितना असेट्स है क्या है। अगर मुझे यहाँ पर किधर भी कुछ जोल करना है, मैं इजीली कर सकती हूँ, then easily do it up. So all the employees should not have a access to the books of accounts. Then we have seen this point as well कि it is possible कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एनुअल लीव भी देना चाहिए एम्प्लॉयज को। तो अगर हम उनको एनुअल लीव पर भेजते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली वंस इन द ईयर अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ कुछ इन लोग ने एरर या फ्रॉड्स तो नहीं किए हैं, then we can use the mechanical devices as well. When I say mechanical device मतलब हमारे पास कोई ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर होना चाहिए। it should be properly employed कि फिर परेशानी ना हो। there should be a proper budgetary control as well, जो हम एस्टिमेट से हम प्रॉपरली देख सके। तो पहले हम बजटरी क्या होता है कि हम पहले एस्टिमेट्स करते हैं कि हाँ इतना इतना पॉसिबल है, इतना खर्चा हो सकता है, एंड देन दिस वी कंपेयर इट विद द एक्चुअल वन। से फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू कंडक्ट एन इवेंट, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि दिस इवेंट नीड्स टू गेट कंप्लीट, मतलब द कॉस्टिंग विल बी ऑफ से 1 लाख रुपीज, बट एक्चुअली में हो गया मेरा 1,20,000। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, एक्चुअल दैट इज 1,20,000 को मुझे मेरे एस्टिमेट्स, जो मैंने एस्टिमेट कितना किया था 1 लाख रुपीज का, तो आई विल कंपेयर ओवर ईयर कि ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो किसके वजह से हो गया। अगर ऐसा कुछ ये डिविएशंस आते हैं तो मुझे वो डिविएशंस के रीजन फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं। सो आई कैन से दैट देयर शुड बी अ बजटरी कंट्रोल एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज that all your records should be complete and accurate. ऐसा नहीं कि कोई इनकम्प्लीट होना चाहिए, कुछ आपने ओमिट कर दिया हो, ओमिशन हुआ हो। So it should be complete as well as it should be accurate. Next is there should be a prompt recording, prompt and proper recording. जब ट्रांजैक्शन हो रहे तब तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लो, अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। जहां भी आप देयर शुड बी एकदम प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप कुछ भी रिकॉर्ड कर लो। सो देयर शुड बी अ प्रॉम्प्ट एज वेल एज द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन विच टू बी डन
while by following all the accounting policies. तो देखो, you can correlate the points over here. ये proper और prompt record तो कर दिया, पर it should be done according to the policies which they have framed. It should be recorded on the basis of all the accounting policies. And who will be adopting accounting policies? Obviously the management. Properly there should be a treatment of the expenses. Depreciation should be charged properly. जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो स्टैट्यूटरी जो भी मैंडेटरी प्रोविजंस है, वो आपको इनकॉर्पोरेट करना ही है. सो इट शुड बी प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है? So this all are the points which you can consider it while framing an internal check and the control. Even if you want, you can add more of the point, like physical stock taking is also there. Okay, there should be a proper valuation of the opening stock and the closing stock, and this closing stock should be physically verified. तो एटलीस्ट हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इसके वजह से. देयर शुड बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ड्यूटीज. प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए so that the employees को भी confusion ना रहे. So all are these points which you can take it up. समझा? So this was all about your internal check.